Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, what minimum age is required to be elected as the President of India? 18 years, 25 years, 30 years or 35 years? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 35 ईयर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। The minimum age required to be elected as the President of India is 35 years. Article 58 of the Constitution of India requires that the presidential candidate must be an Indian citizen, at least 35 years old, and qualified to be elected as a member of the House of the People. भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वे लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रांस, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा? भारत के संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? फ्रांस, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस। The concept of republic in the Constitution of India was borrowed from the French Constitution. The French Constitution's principles of liberty, equality and fraternity were also adopted in the Constitution of India. भारत के संविधान में गणराज्य की अवधारणा फ्रांसीसी संविधान से ली गई थी। फ्रांसीसी संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को भारत के संविधान में भी अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ केसेस? ओनली सिविल केसेस, only criminal cases, both civil and criminal cases or only family law cases? रेस जुडिकाटा का सिद्धांत किस प्रकार के मामलों पर लागू होता है? केवल सिविल मामले, केवल आपराधिक मामले, सिविल और आपराधिक दोनों मामले या केवल पारिवारिक कानून के मामले? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिविल और आपराधिक दोनों मामले। Recently in the case of Har Narayan Tiwari through legal representatives versus Cantonment Board, Ramgarh Cantonment and others, the Supreme Court ruled that the principle of res judicata applies to co-defendants as well when there is a conflict of interest between them. The principle of res judicata applies to both civil and criminal cases. It prevents the same issue from being litigated more than once when it has already been resolved by a competent court. हाल ही में हर नारायण तिवारी कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम छावनी बोर्ड, रामगढ़ छावनी और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जब सह प्रतिवादियों के बीच हितों का टकराव होता है तो रेस जुडिकाटा का सिद्धांत उन पर भी लागू होता है। रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सिविल और आपराधिक दोनों मामलों पर लागू होता है। यह सिद्धांत एक ही मुद्दे पर एक से अधिक बार मुकदमा चलाने से रोकता है जब उसका समाधान पहले ही सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under the Code of Criminal Procedure, which section grants a court the power to examine the accused? Section 161, Section 313, Section 482 और Section 200? दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सी धारा अदालत को अभियुक्त की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है? धारा 161, धारा 313, धारा 482 या धारा 200? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेक्शन 313। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 313। Recently, in the case of Naresh Kumar versus State of Delhi, the Supreme Court ruled that the conviction of the accused cannot be upheld because he was not examined under Section 313 of the Code of Criminal Procedure, leading to significant prejudice against him. Section 313 of the Code of Criminal Procedure mandates the court to examine the accused after the prosecution's evidence is closed. In BNSS, the power to examine the accused is provided in Section 531. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नरेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य के मामले में फैसला सुनाया कि अभियुक्त की सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ नहीं की गई थी, जिससे उसके खिलाफ महत्वपूर्ण पूर्वाग्रह पैदा हो गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अनुसार अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के बाद अदालत को अभियुक्त से पूछताछ करने का आदेश दिया गया है। बीएनएसएस में अभियुक्त की जांच करने की शक्ति धारा 531 में प्रदान की गई है। द लास्ट क्वेश्चन इज, द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कन्फेशन, dying declaration, relevancy of judgment, or entries in books of account?
पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वीकारोक्ति, मृत्यु पूर्व घोषणा, निर्णय की प्रासंगिकता या खाता पुस्तकों में प्रविष्टियां। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कन्फेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वीकारोक्ति। In Palvinder Kaur versus the State of Punjab 1952, the Supreme Court held that Palvinder's alleged confession in the view of the case that we have taken does not require any discussion because if the confession is inadmissible, no questions of corroborating it arises. पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे द्वारा लिए गए मामले के मद्देनजर पलविंदर की कथित स्वीकारोक्ति पर किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य है तो इसकी पुष्टि का कोई सवाल ही नहीं उठता है। Before we wrap up, here's a question for you. Which of the following is not considered evidence under the Indian Evidence Act of 1872? Oral evidence, hearsay evidence, primary evidence, or expert evidence? निम्नलिखित में से किसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य नहीं माना जाता है? मौखिक साक्ष्य, सुनी सुनाई बातों पर आधारित साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य या विशेषज्ञ साक्ष्य? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।